I will now call the remaining members, starting with serial number 32. Shri Mithlesh Kumar, demand for Melani Farrukhabad new railway line project. My subject, demand for Melani Farrukhabad new railway line project. आदरणीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मैलानी फर्रुखाबाद नई रेल लाइन परियोजना के तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मैलानी फर्रुखाबाद नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। लगभग 150 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना का पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इस पिछड़े क्षेत्र में व्यवसाय तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा रेलवे की आय में वृद्धि होगी। ये नई रेल लाइन विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी बन सकेगी। सैन्य छावनियों के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी तथा टनकपुर स्थित छावनियों से होने से संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को मजबूती मिल सकेगी। अतः सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस जनहित की परियोजना मैलानी फर्रुखाबाद नई रेल लाइन पर इसी वर्तमान बजट में धन अभिमुक्त करके यथाशीघ्र कार्य का शुभारंभ कराने की कृपा करें, जिससे इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश को सामरिक मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मिथिलेश कुमार जी। माननीय श्री संजय राउत जी, माननीय श्री संजय राउत जी प्रेजेंट नहीं। माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी नहीं मौजूद। माननीय श्री नीरज डांगे जी। Sir, thanks for giving me this opportunity to raise this urgent public importance matter through special mention. The Government of India has mandated the display of Mahatma Gandhi's portrait in all government offices, public institutions, and courts as a mark of respect and to inspire citizens. All government institutions have been directed to display Dr. Ambedkar's portrait also, recognizing his contributions to social justice, equality, and the Constitution of India. This mandate is based on Supreme Court directives and various government notifications and circulars from 2013 to 2019. Compulsory displaying these portraits serve as a reminder of their contribution to India's freedom, social justice, and constitutional values. In year 2019, the Supreme Court directed all educational institutions to display the preamble of Constitution of India in their premises. Displaying the preamble acknowledges its significance as an integral part of the Constitution and India's governance framework. Like all schools and educational institutions, all government institutions should also display the preamble prominently, fostering a sense of national unity, values, and constitutional responsibility. The display of preamble of the Constitution of India in all government institutions will promote national integration, reflecting the country's commitment to sovereignty, socialism, secularism, and democracy. Embodies the fundamental values and principles enshrined in the Constitution, serving as a reminder to public servants. Inspire and educate citizens about India's constitutional heritage and core values. Symbolize the national pride and identity, reflecting the country's history, philosophy, and aspirations. Therefore, I urge the Government of India, through you, Vice Chairman, sir, to issue appropriate direction to all government institutions for mandatory displaying the preamble of the Constitution of India in their premises. Thank you, sir.
धन्यवाद माननीय नीरज डांगी जी। माननीय श्री संजय सिंह जी, माननीय श्री संजय सिंह जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। लखनऊ की जनता की महत्वपूर्ण मांग को उठाने की अनुमति देने के लिए माननीय आपका कोटसा धन्यवाद। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के नागरिकों की प्रबल इच्छा है कि लखनऊ से माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा, श्री खाटू श्याम मंदिर रींगस, सीकर राजस्थान, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और शिरडी साईं मंदिर महाराष्ट्र के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएं। ये स्थल प्रमुख धार्मिक स्थान हैं। लखनऊ एक ऐसा स्थली बन चुका है जहां पर तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ अप्रूव टेक्स्ट ही बोल सकते हैं माननीय दिनेश जी। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं। लखनऊ से लाखों श्रद्धालु इन स्थलों की यात्रा करते हैं। सीधी ट्रेन सेवाओं के अभाव में यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती है, जिससे यात्रा कठिन और समय साध्य हो जाती है। सीधी ट्रेन सेवाएं यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाएंगी। सीधी ट्रेन सेवाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अधिक श्रद्धालु और पर्यटक लखनऊ से यात्रा कर सकेंगे, जिससे शहर के होटल और पर्यटन उद्योग को आर्थिक लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में लखनऊ से इन स्थलों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कई चरण में यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। सीधी ट्रेन सेवाओं से समय की बचत होगी और यात्रा आरामदायक हो जाएगी। लखनऊ से इन स्थलों के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करना रेलवे की इस पहल का महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि लोक महत्व के इस विषय को देखते हुए लखनऊ से इन प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन चलाई जाए। माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी, माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी। डिमांड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज ऑफ भारत संचार निगम। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड के अंदर भारतीय संचार निगम द्वारा दी जाने वाली मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधाओं में और अधिक सुधार करने की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, पहाड़ी राज्य होने के कारण दूर दराज के गाँव को आज के संचार क्रांति से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य के 6000 अतिरिक्त गाँवों को संचार सुविधा से जोड़ने का निश्चय किया गया था, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 2000 के आसपास गाँव को ही इस सुविधा से जोड़ा जा सका है। BSNL द्वारा 1206 नए टावर लगाने के लक्ष्य को भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों में जो टावर लगे हैं उनके द्वारा भी मोबाइल कनेक्टिविटी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आज जहां अन्य मोबाइल कंपनियां 5G नेटवर्क की सुविधा उपभोक्ताओं को दे रही हैं, वहीं मेरे राज्य में भारतीय संचार निगम द्वारा 4G की सुविधा भी ठीक प्रकार से नहीं दी जा पा रही है। महोदय, क्योंकि आज के संचार युग में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन भी दूर संचार एवं इंटरनेट नेटवर्किंग पर सर्वाधिक निर्भर हो गया है। मेरे राज्य में जहां भारतीय स्टेट बैंक के ATM संचालन के लिए BSNL कनेक्टिविटी पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं सीमा पर तैनात ITBP को भी आज इंटरनेट एवं फ़ोन की आवश्यकता रहती है। अतः महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उत्तराखंड राज्य के दूर दराज गाँवों में BSNL मोबाइल सुविधा को दुरुस्त करने एवं उपभोक्ताओं को 4G कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान करने की मांग करता हूं। धन्यवाद माननीय महेंद्र भट्ट जी। माननीय श्री संजीव अरोड़ा जी, माननीय श्री संजीव अरोड़ा जी अनुपस्थित। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण अनुपस्थित। माननीय श्री प्रकाश चिक बाराइक, प्लीज। Thank you, Deputy Chairman Sahab. My special mention subject is demand for giving ST status to 11 left out caste of Gorkha community and given expansion to Gorkha brothers to whole of the country in paramilitary force. Deputy Chairman Sir, मैं आज गोरखा समुदाय के 11 छूटे हुए उप समूहों के से संबंधित एक लंबे समय से चल रहे मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश में 1.25 करोड़ गोरखाओं की महत्वपूर्ण आबादी के बावजूद वे अनुसूचित जनजाति के दर्जे और उनके लाभ से वंचित हैं। सर, हम गोरखा समुदाय के समृद्धि एवं सांस्कृतिक
विरासत हमारे राष्ट्र में उनके योगदान से परिचित है। मैं सरकार से इन 11 छूटे हुए उप समूह जैसे राय, लेम्बू, तमांग, गुरुंग, मगर, सनवार, थामी, भुजेल, नेवार, जोगी एवं दीवान को एसटी का दर्जा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूं। साथ ही गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह पूरे देश में रहने वाले गोरखाओं को अर्धसैनिक बल में भर्ती में उनके लंबाई में छूट देने के लिए उचित कदम उठाने के आग्रह आपके माध्यम से सरकार को करना चाहता हूं। धन्यवाद माननीय श्री प्रकाश जी। माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी। माननीय उपसभापति महोदय, the special mention topic now is concern over water supply scarcity in Marathwada region of Maharashtra. In my constituency of Maharashtra, the Marathwada region is a drought-prone area of the state, facing a problem of water scarcity each year. The Marathwada region has only 1,688 cubic meters of water per hectare, which is much more below the normal value of 3,000 cubic meter per hectare. The necessities of the transfer of nearly 260 TMC of water resources from other regions of Maharashtra. The Water Resources Department of Government of Maharashtra has decided by resolution dated 19/9/2019 to transfer of 155 TMC water to Marathwada region. However, no action has been initiated in this resolution in the last 5 years. In addition, the water of about 51 TMC will have to be transferred from Krishna Basin. Similarly, the water of 34 TMC is to be diverted from new scheme planned for the Wainganga Nalangra Dam by pipeline to meet the shortage of Yeldari and Penganga Dam in Marathwada. As such, the overall deficit of 260 TMC of water for Marathwada can be met with by transfer of 250 TMC of water from various regions as mentioned in the first stage. It is thereby requested that the central government to take initiatives and include the said schemes in river link project by providing necessary budgetary provision to overcome the water deficit of Marathwada region. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री अजीत कुमार भुयान, माननीय श्री अजीत कुमार भुयान, not present. Dr. M. Thambidurai, Dr. M. Thambidurai, not present. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 1st August 2024.